observation. Let's make this as observations. So first observation is, if R is a commutative ring, so if R is a ring, not necessarily commutative, if R is a ring, then the set consisting of only zero element. This is an ideal of R, and the whole ring R itself is an ideal of R. Then 0 and R itself. Are ideals of R. Left ideal as well as right ideal as well as two-sided ideal. You can see it very easily. So the set consisting of zero element alone and the whole ring are ideals in fact. Secondly, if R, there is one thing very important with the ring theory. We mostly prefer to consider rings which are not equal to zero ring, because this is a very simple case of a ring. So we mostly like to consider rings which are not equal to zero. It means that rings which have zero element and few more elements, rings which have elements other than zero as well. So if R is not equal to zero, then this particular ideal is proper ideal of R, is proper ideal of R. If you want to have the definition, we can say that where a proper ideal of ring R is an ideal other than R. So an ideal which is properly contained in R is called proper ideal. And thirdly, an ideal of a ring. Let me write it properly. Let R be a ring and I be an ideal of left ideal, right ideal, or two-sided ideal. So let's say just ideal. So let R be a ring and I be an ideal of R. Then what we are going to note is that if multiplicative identity of I, let R be a ring, let me mention here that let R be a ring with identity. Let R be a ring with identity. Then if identity element 1 belongs to this ideal I, then this ideal I becomes equal to the whole ring R. I am asking you this question, why should it happen? Think about that. Let me rewrite it. In other words, a proper ideal
a proper ideal of ring R with identity cannot contain identity element, cannot contain multiplicative identity. Because if it contains multiplicative identity, it will become equal to R. Why should it happen? Think about that. You will be able to find the reason very easily. So a proper ideal cannot contain multiplicative identity. Now let's come to a concept called principal ideals. Principal ideals. Principal ideals. In fact, we can define principal left ideal, principal right ideal, and principal two-sided ideal. So let's see what a principal ideal is. Let me give you an example. Example of principal left ideal. So consider M3, the same ring we have discussed above, and let A be a matrix belonging to M3. So take a matrix, consider a matrix or choose a matrix from M3. Then do as follows. Multiply this particular matrix A with all the matrices of M3 from left hand side. Choose a matrix from M3 and multiply it with A. Choose other matrix, multiply with A, and so on. So here X belong to M3. X is a matrix or an element of M3. You can easily check that this particular set is a subring and it is in fact an ideal. So let A belong to M3. So this particular set, this is an ideal. We call it ideal generated by A. Ideal generated by A. Because we have multiplied all the elements of M3 with A from the left hand side. So this is ideal generated by A. In fact, this is principal left. Ideal generated by a single element is called principal ideal. Since this is principal left ideal, we put just a small dot here, just to for us to recognize that this is left ideal. So this is principal left ideal. Ideal generated by a single element. Then this particular set is left ideal of M3, and you can check it on your own. Similarly, called principal left ideal. So a principal left ideal is a left ideal generated by a single element of the ring. We can define it. Let's do that.
So definition will go as follows. Let R be a ring. Then a left ideal of R generated by a single element of R, single element A of R is called principal left ideal. Left ideal. We may write ideal generated by A left principal left ideal. This is equal to RA such that R belong to R. So ideal generated by a single element is called left ideal generated by a single element is called principal left ideal. So definition. Similarly for principal right ideal. Similarly for principal right ideal. And that is principal right ideal generated by A. We put dot on the right hand side and this is equal to A R such that R belong to R. This is also written as ring R multiplied with A. All the elements of ring are multiplied with the element A, and this can be written as all the elements of ring are multiplied with A from the left hand side. A is on the left hand side. Elements of the ring are on the right hand side. So this is principal right ideal, and this is principal left ideal because elements of the ring are on the left hand side. So be very careful about that. So this was about principal left and principal right ideas. I have given you example as well. These concepts of being principal ideal are mostly useful when ring is a commutative ring. So let's turn to commutative rings and talk about principal ideal. So first we note that if R is a commutative ring, then the concepts of left ideal, right ideal, and two-sided ideal coincide, they become same, coincide, and we use phrase, we don't say left ideal,
left ideal, right ideal, two-sided ideal in such case, and we use phrase ideal. So if the ring is commutative, we talk about ideals only. And if R is a commutative ring, then a principal ideal is an ideal which is generated by a single element. So let's define it again. In this case, we will have better examples. In fact, simple examples. So let R be a commutative ring. Then an ideal generated by a single element A belonging to R is denoted by, we will denote it by, is denoted by this particular notation and is called principal ideal. Is called principal ideal. Let me give you an example. Consider Z, the ring of integers. Let consider and take an element of Z. Let's say 3 belong to, consider, we choose this element from this ring Z. Then principal ideal generated by 3. This very simple thing, multiply all the elements of Z by 3. So this is minus 9, minus 6, minus 3, 0, 3, 6, 9, and so on. So this is ideal generated by 3, and note that this is exactly the same thing as 3Z. So this is principal ideal. So this is principal ideal. This is principal ideal. So for Z, it is very simple to see what principal ideal is. Let's have a note. Consider 1 belonging to Z. Z, this is the ring of integers. Then note that ideal generated by 1. Just note that ideal generated by 1. What we are going to do? We are going to multiply all the elements of ring Z with 1. And what will we obtain? We will obtain Z again. So note that if a ring contains multiplicative identity, then principal ideal generated by that particular, then principal ideal generated by multiplicative identity of that ring is equal to the ring. Let me note this thing. If R is a ring with identity, multiplicative identity, then principal ideal generated by 1 will be equal to the whole of the ring itself. So ideal generated by multiplicative identity is the ring itself.
Let's come to a definition. A ring in which every ideal is principal ideal is called principal ideal ring. Let's define that. So definition. A ring in fact this ring should be a commutative ring. So a ring, let me write it commutative. A commutative ring are such that every ideal of R is principal ideal is called principal ideal ring. Is called principal ideal ring. So a commutative ring are such that every ideal of R is principal ideal is called principal ideal ring. Now we shall prove that Z, the ring of integers, is principal ideal ring. Proposition. The ring of integers Z Z is principal ideal ring. Is principal ideal ring. So let's have the proof. So we are going to prove that every ideal of Z is a principal ideal or is generated by a single element. To see that, we choose an ideal of Z and we shall prove that the ideal I is generated by a single element. So let I be an ideal of Z. And we know that Z is a commutative ring. And we know that Z is a commutative ring. It's just a note. So let I be an ideal of Z. We have two cases. If ideal I is equal to zero ideal which consists of zero element alone, we have we have noted that this particular subset of a ring is an ideal. So if I is zero ideal, then I is equal to ideal generated by zero, because ideal generated by zero is equal to zero. तो अगर I जो है वो ज़ीरो है, ज़ीरो आइडियल है, तो फिर I जो है वो ज़ीरो एलिमेंट से जनरेट होता है एंड देयरफॉर
and therefore I is principal ideal, क्योंकि ये जीरो से जनरेट हो रहा है ना. So ideal generated by a single element is called principal ideal. Therefore I is principal ideal. Then this is the first case. Second case, if I is not equal to zero ideal, then I contains non-zero elements. Then I contains non-zero elements या non-zero integers. Then I contains non-zero elements or I contains non-zero integers, because Z is a ring of integers. I contains non-zero integers. अब देखिए non-zero integers क्या होते हैं. -3, -2, -1, -6, -4, 2, 3, 4, 5, 1, 6 ये non-zero integers हैं. तो अगर I में non-zero integers हैं तो फिर I में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे. तो देन आई, क्योंकि आप जानते हैं कि आइडियल जो है वो रिस्पेक्ट टू एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है, इसलिए आइडियल में अगर 3 होगा तो -3 भी होगा, -3 होगा तो 3 भी होगा. इसलिए अगर किसी आइडियल में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी ज़रूर होंगे. देन आई कंटेन्स non-zero integers and therefore I contains positive integers as well. तो I में positive integers भी होंगे. अब इंटीजर्स की एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि अगर आपको एक सेट ऑफ इंटीजर्स दे दिया जाए तो आप उनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर है वो आप यू कैन फाइंड द लीस्ट. अगर आप पॉजिटिव इंटीजर दे दिए जाए तो यू कैन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. अगर आप, लेट मी रिपीट इट अगेन, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट दे दिया जाए तो आप उनका सबसे छोटा इंटीजर जो है ना पॉजिटिव इंटीजर वो हासिल कर सकते हैं. सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, मैं सबसे बड़ा नहीं कह रहा, सबसे छोटा. Therefore I contains positive integers as well. तो फिर ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इनमें कोई ना कोई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो हम क्या लेते हैं, इस पर बड़ी तवज्जो दीजिए. मैं कह रहा हूँ सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नहीं, सबसे छोटा. तो इसमें चूँकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो कोई ना कोई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ज़रूर होगा. सोचें इसके बारे में. तो देयरफॉर let's take that, let m small m be the least positive, note that least positive, be the least positive integer in I. ये बात बड़ी तवज्जो की बात है, least positive integer. So let m be the least positive integer in I. So having said that, हम I का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी और एलिमेंट I का चूज़ कर लीजिए. तो लेट n बिलोंग टू I का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. देन अब देखिए प्रोसेस है जो आप मैथमेटिक्स में जानते हैं कि अगर आपको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए जाएं जिनमें से एक छोटा और एक बड़ा हो, तो जो बड़े वाला है उसे आप छोटे वाले के साथ तकसीम कर सकते हैं. जैसे अगर आपको 10 और 3 दे दिया जाए तो 10 को आप 3 से तकसीम कर देते हैं. 3 3 ज़ा 10 और 1 रिमाइंडर जो भी आप जानते हैं. तो लेट n बिलोंग टू I. देन अब हम n को m से डिवाइड करेंगे क्योंकि m छोटा है, n बड़ा है. क्योंकि m तो सबसे छोटा था ना, तो it is smaller than n. Then m is less than n.
and therefore we have, यहाँ m लेस, अगर आप चाहें तो n को m के बराबर भी ले सकते हैं। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपने m को n से छोटा या जो भी है बराबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन देन m इज़ लेस देन इक्वल टू n एंड देयरफॉर आप n को m से डिवाइड कर सकते हैं एंड वी हैव n इज इक्वल टू m क्यू प्लस r। आप जानते हैं ये चीज़, n इज इक्वल टू m क्यू प्लस r, और यहाँ पर r पर कंडीशन भी आपको मालूम होगी कि r को 0 से ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए और r को m से डिवाइड करने वाले से हमेशा छोटा होना चाहिए। r इज़ लेस दैन m, सो n इज इक्वल टू m क्यू प्लस r एंड देयरफॉर n माइनस m क्यू इज इक्वल टू r। अब नोट कीजिए कि नाउ n जो है वो आइडियल आई को बिलोंग करता है। हमने n को चूज़ ही आइडियल आई का एलिमेंट किया था। n बिलोंग टू आई एंड चूँकि m भी i को बिलोंग करता है और i आइडियल है, इसलिए जब आप m को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी i को बिलोंग करेगा। और हर आइडियल बेसिकली चूँकि अबेलियन ग्रुप होता है, सब रिंग बेसिकली अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन होता है, तो n i को बिलोंग करता है, m q i को बिलोंग करता है, तो फिर देयरफॉर n और m q का जो डिफरेंस है ये भी i को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर n माइनस m q बिलोंग टू i एंड देयरफॉर n माइनस m q r के बराबर है, तो देयरफॉर r बिलोंग टू i। अब नोट कीजिए कि i का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो तो m है और r m से भी छोटा है, तो फिर तो r i को बिलोंग नहीं कर सकता ना। एक ही पॉसिबिलिटी है कि r जो है वो 0 के बराबर हो एंड देयरफॉर r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू है r इज इक्वल टू, ये r की 0 वैल्यू 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू m क्यू, यानी कि n जो है वो m का फिर मल्टीपल है, यानी कि m को q से मल्टीप्लाई करें तो n बनता है। तो देयरफॉर अगर आप m से आइडियल जनरेट करें तो m q इसके अंदर होगा, क्योंकि आपने m से जनरेट होने वाले आइडियल का मतलब है कि आप m को तमाम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, तो q भी इंटीजर है तो m q इसके अंदर होगा। तो देयरफॉर n बिलोंग टू आइडियल जनरेटेड बाय m एंड देयरफॉर अब नोट कीजिए कि n जो है वो तो i का कोई भी एलिमेंट था, तो देयरफॉर i जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय m का सबसेट हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। बट अब नोट कीजिए कि m जो है वो हमने i का एलिमेंट लिया था, हमने उसमें कहा था कि m जो है वो i का सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा पॉजिटिव एलिमेंट है। m जो है वो i को बिलोंग करता है, देयरफॉर जब आप m को रिंग के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे प्रोडक्ट भी i के अंदर आएंगे, क्योंकि आइडियल की डेफिनेशन ये है कि जब आप एक एलिमेंट आइडियल का और एक एलिमेंट रिंग का लेकर मल्टीप्लाई करते हैं जो आप आइडियल का एलिमेंट होता है। इसलिए जब आप m को रिंग के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडियल जनरेटेड बाय m बनेगा और ये तमाम एलिमेंट जो है ना ये i को बिलोंग कर रहे होंगे, i का ये सबसेट हो जाएगा। तो ये नंबर 3। तो फ्रॉम
2 and 3, ये from 2 and 3 I is equal to ideal generated by M, and therefore I is principal ideal. तो हमने रिंग Z का एक आइडियल लिया और प्रूव कर दिया कि वो प्रिंसिपल आइडियल है। तो रिंग ऑफ इंटीजर्स का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा। तो देयरफॉर Z, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग। देयरफॉर Z, the ring of integers, is principal ideal ring. एक ऐसी रिंग जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है, और Z का हर आइडियल जो प्रिंसिपल आइडियल है, सो Z इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग. So having said that, we come to an other, not other concept, the same concept. अगर किसी रिंग का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो तो वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। और आप जानते हैं कि एक ऐसी रिंग जिसमें ज़ीरो डिवाइज़र ना हो, रिंग कम्यूटेटिव हो और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाती है, सॉरी वो इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। तो एक ऐसी रिंग जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है, और एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाती है। लेट मी डिफाइन दैट definition. Let D be an integral domain if every ideal of D is principal ideal, then D is called principal ideal domain. ये वही डेफिनेशन, कोई ख़ास फर्क नहीं है इसके अंदर. Then D is called principal ideal domain. So having defined that, we write a corollary to above proposition. Corollary to above proposition जो हमने अभी प्रूव की है, above proposition. और corollary ये है कि Z, the ring of integers, is principal ideal domain. The ring of integers is principal ideal domain. और इसे आप अक्सर बुक्स में देखेंगे PID लिखते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है कि हमने प्रूव कर दिया है कि Z जो है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। सो वी हैव प्रूव दैट
Z is principal ideal ring. ये हमने प्रूव किया है. We also know that देखिए जो बातें हम जानते हैं वो ये है. नंबर 1 तो हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी Z में है. दूसरे नंबर पर Z जो है वो कम्यूटेटिव रिंग है. Z इज कम्यूटेटिव रिंग. और तीसरी बात जो हम जानते हैं वो ये है कि Z डज नॉट कंटेन ज़ीरो डिवाइसेस. Z डज नॉट कंटेन ज़ीरो डिवाइसेस. इसके मानी ये है कि Z जो है वो इंटीग्रल डोमेन है. दैट इज Z इज इंटीग्रल डोमेन. तो अगर हम इन चीज़ों को मिला लें, नंबर 1 को भी कि Z जो Z का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है और फिर Z जो है वो इंटीग्रल डोमेन है. तो कंबाइनिंग दीज टू विद ईच अदर we conclude that therefore Z is principal ideal domain. Principal ideal domain. So it's quite simple. ये तो वही रिजल्ट है जो हमने ऊपर प्रूव किया था. दिस PID प्रिंसिपल आइडियल. Z is PID principal ideal domain. So having said that, let's come back to definition of ideal. Let me give you criterion for a subset of a ring to be an ideal. So criterion of to be a left ideal, to be a right ideal, to be a two-sided ideal. So let me give you criterion. Criterion for being ideal. लेफ्ट राइट टू साइड वो हम अलग अलग लिख लेंगे. क्राइटेरियन फॉर बीइंग आइडियल यानी कि कौन सा सेट है और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो आइडियल होगा. यू कैन ईजिली कन्विंस योर सेल्फ दैट दीज आर द कंडीशंस विच विल मेक सबसेट ऑफ रिंग इनटू एन आइडियल. सो लेट आर बी अ रिंग. Let R be a ring. Then a subset I of R is left ideal. इसी तरह आप राइट के भी लिख सकते हैं. is left ideal if, अब देखिए ये कंडीशंस हैं. नंबर 1, पहली बात तो ये है कि आई को नॉन एम्प्टी होना चाहिए. आपको याद होगा ये हम सब ग्रुप्स में भी ये काम किया करते थे. आई को नॉन एम्प्टी होना चाहिए. दूसरे नंबर पर यह है कि आई को एडिटिवली क्लोज्ड होना चाहिए. ए प्लस बी बिलोंग टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आई. ये सेकंड कंडीशन है. और थर्ड कंडीशन ये है कि लेफ़्ट आइडियल की बात हम कर रहे हैं तो हमें रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना होगा. और ए बिलोंग टू आई फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई. आइडियल के किसी भी एलिमेंट को रिंग के किसी भी एलिमेंट से आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो है वो आइडियल को बिलोंग करे. तो ये 3 कंडीशंस हैं जो किसी रिंग के किसी भी सबसेट को आइडियल बनाती हैं.
अब देखिए इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज होने की बात इसलिए नहीं की है कि वो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन से आ जाती है कि अगर आपको आइडियल के कोई दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो उनमें से एक एलिमेंट को आप समझ लीजिए वो रिंग का एलिमेंट है, दूसरा आइडियल का एलिमेंट है, तो वो ये कंडीशन जो है ना ये मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज होने की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाती है। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। सो दिस इज द क्राइटेरियन फॉर a subset being a left ideal. Similarly for right and two-sided ideals. Similarly for right ideal and for two-sided ideal. वरना या बिला वजह ये रिपीट करने की बात ही होगी। and for two-sided ideal. तो इसे आप यहाँ पर लेफ़्ट की जगह राइट लिख दें, टू साइडेड लिख दें, तो डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करें तो यू विल बी एबल टू dwell the definition. So having discussed this particular criterion, let's come to a result, and that says that inter ideals is an ideal. लेफ्ट हो या राइट हो या टू साइडेड हो तो हम लेफ्ट के लिए प्रूव कर देंगे, राइट टू साइडेड के लिए ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सो लेट्स हैव दिस प्रोपोजिशन। This will be very simple proof. Let R be a ring and let I alpha such that alpha belong to, let's say, A, be a family of left ideals of R. हम लेफ्ट आइडियल्स के लिए प्रूव कर लेंगे और राइट और टू साइडेड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो बी अ फैमिली ऑफ लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर, देन इन आइडियल्स का इंटरसेक्शन ओवर अल्फा बिलोंगिंग टू ए, आई अल्फा is also a left ideal of R. अब प्रूफ के लिए आप जानते हैं कि हमें सिर्फ 3 कंडीशन प्रूव करनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि जिसे हमने आइडियल प्रूव करना है उसे नॉन एम्प्टी होना चाहिए। कोई दो एलिमेंट दे दिए जब उनका उसे एडिटिवली क्लोज्ड होना चाहिए। और आइडियल की कंडीशन कि एक एलिमेंट रिंग का एक एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई करें तो जो आप आइडियल में होना चाहिए। सो लेट्स प्रूव दैट। नंबर 1, we note that कि ये जो इंटरसेक्शन है इसको ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग करता है। ज़ीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन और अल्फा बिलोंगिंग टू ए, आई अल्फा। ज़ीरो इसको बिलोंग करता है। जो ज़ीरो हर आइडियल में है ना, तो तमाम आइडियल्स के इंटरसेक्शन में ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो इसको बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो देयरफॉर दिस इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंगिंग टू ए, आई अल्फा इज़ नॉन एम्प्टी। तो ये एम्प्टी नहीं हो सकता। दिस वेरी सिंपल थिंग। सेकेंडली, अब हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। आप ए एंड बी कह लीजिए या एक्स एंड वाई कह लीजिए, वट एवर यू लाइक। तो लेट फर्स्ट कीजिए ए और बी, ये दो एलिमेंट जो है इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करते हैं। अल्फा बिलोंगिंग टू ए, आई अल्फा।
अगर ऐसा है तो फिर ये जो ए बी हैं ये हर आई अल्फ़ा को बिलोंग करेंगे, देन ए बी बिलोंग टू आई अल्फ़ा फॉर ईच, हर आइडियल में होंगे ना ये, चूँकि इंटरसेक्शन में है, तो फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ए एंड देयरफॉर, अब चूँकि हर आई अल्फ़ा आइडियल है तो अगर ए और बी इसमें है तो इन दोनों का सम भी इसमें होगा फॉर ईच अल्फ़ा, क्योंकि हर एक आइडियल है, तो फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ए। अब ए प्लस बी चूँकि हर आइडियल में है तो फिर तमाम के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो देयरफॉर ए प्लस बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज आइडियल्स। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तीसरी कंडीशन के लिए आप कह लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है और ए एलिमेंट जो है वो इन तमाम आइडियल्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ए आई अल्फ़ा। ये ज़रा अल्फ़ा और ए को एहतियात से लिखिए, मैं एक्स चूज़ करने लगा था लेकिन एक्स भी लिखने में कभी कभी अल्फ़ा के साथ मिल जाता है, बस एहतियात से लिखिए। तो लेट आर बिलोंग टू आर एंड ए बिलोंग टू intersection of these ideals, then R belong to R तो वैसे ही लिख लीजिए एंड A चूँकि तमाम आइडियल्स के इंटरसेक्शन में है तो A फिर हर आइडियल में होगा, A belongs to I alpha for each alpha belonging to A एंड therefore अब आई अल्फ़ा चूँकि आइडियल है, लेफ़्ट आइडियल है, इनफैक्ट दिस इज़ लेफ़्ट आइडियल, इसलिए रिंग के एलिमेंट को इसके एलिमेंट के साथ अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आई अल्फ़ा में होगा। दिस इज़ फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ए। अब देखिए ये आर ए हर आई अल्फ़ा में है तो तमाम के इंटरसेक्शन में होगा, देयरफॉर आर ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ओवर अल्फ़ा बिलोंगिंग टू ए आई अल्फ़ा। तो अब देखिए तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन ये नॉन एम्प्टी है, दूसरी कंडीशन कोई दो एलिमेंट दे दी जाए उनका सम भी इसके अंदर है, तीसरी कंडीशन एक एलिमेंट रिंग का और एक एलिमेंट इस इंटरसेक्शन का दिया जाए तो रिंग के एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड से इसके एलिमेंट को राइट पे रख के मल्टीप्लाई करें तो जवाब फिर इसी के अंदर है, तो देयरफॉर दिस इज अ लेफ्ट आइडियल, देयरफॉर दिस इंटरसेक्शन is also left ideal of R. Similarly for right ideals and two-sided ideals. So similarly, let's close this proposition here. So similarly for left right ideals and two-sided ideals. So this was quite simple proposition. We come to another proposition. Proposition. अगर हमें कोई दो आइडियल्स दे दिए जाएं तो हम let me write it here. Let R be a ring
let R be a ring and I and J be left ideals of R. ये हम इसके कोई दो लेफ्ट आइडियल्स ले लेते हैं, बी लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर। देन देखिए करेंगे हम यूं के एक एलिमेंट आइडियल आई का ले लेंगे ए, एक एलिमेंट आइडियल जे का ले लेंगे बी। तो हमने ए जो है वो आइडियल आई का एलिमेंट लिया है, बी जो है वो आइडियल जे का एलिमेंट लिया है, और करेंगे हम ये कि हम इन एलिमेंट्स को आपस में जमा कर देंगे, और ये हम आई और जे के तमाम एलिमेंट्स के साथ ऐसा करेंगे, यानी कि एक आई का एलिमेंट एक जे का एलिमेंट जमा कर दिया सारे इस तरह से करके। ये जो रिज़ल्ट आता है इसे आई और जे आइडियल्स का सम कहते हैं, और इसे लिखते भी हमें आई प्लस जे के साथ, आई प्लस जे। प्रूव हम ये करेंगे कि ये आई प्लस जे है, दिस इज आल्सो अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर, इज आल्सो अ लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो ये भी लेफ्ट आइडियल है, कॉल्ड सम ऑफ आई एंड जे। में डेफिनेशन भी बन जाती है ये, तो मैं यही लिख देता हूँ, कॉल्ड सम ऑफ आई एंड जे, आई और जे का सम। तो दिस डेफिनेशन है एज वेल। सो लेट्स कम टू इट्स प्रूफ। प्रूफ सिंपल है, अगर आपको कंडीशन याद है, आइडियल के लिए तीन कंडीशंस हैं, उसे नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एडिटिवली क्लोज्ड होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं कि एक एलिमेंट रिंग का एक एलिमेंट आइडियल का मल्टीप्लाई करें तो जो आप जो है वो आइडियल में होना चाहिए, जिसे कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए ये नोट कीजिए कि वी नोट दैट ज़ीरो जो है वो आई प्लस जे को बिलोंग करता है, और रीज़न इसकी ये है कि बिकॉज ज़ीरो आई को भी बिलोंग करता है और ज़ीरो जो है वो जे को भी बिलोंग करता है। और आप आई प्लस जे में क्या है, आई का एलिमेंट जे का एलिमेंट, तो आई का एलिमेंट आप ज़ीरो ले लें, जे का भी एलिमेंट ज़ीरो ले लें, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो बिलोंग टू आई प्लस जे, तो देयरफॉर आई प्लस जे जो है ये खाली नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज़ीरो तो मौजूद है ना कम से कम। देयरफॉर आई प्लस जे इज़ नॉन एम्प्टी, इट्स नॉट इक्वल टू 5। सेकेंडली अब हम इसके कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं आई प्लस जे के, कि लेट फर्स्ट की एक एलिमेंट एक्स है एक एलिमेंट वाई है, ये दोनों एलिमेंट जो है ना आई प्लस जे को बिलोंग करते हैं। देन अब आई प्लस जे का हर एलिमेंट जो है ना वो तो एक एलिमेंट आई का एक एलिमेंट जे के सम की शक्ल में है, तो फिर एक्स अगर इसको बिलोंग करता है तो एक्स को होना चाहिए एक एलिमेंट आई का और एक एलिमेंट जे का, ये एक्स होगा। और वाई भी इसी किस्म का होना चाहिए कि एक एलिमेंट आई का और एक एलिमेंट जे का, एंड वाई इज इक्वल टू ए टू प्लस बी टू, वेर ए वन ए टू जो है ये आई को बिलोंग करते हैं और बी वन बी टू जो है ये जे को बिलोंग करते हैं। एंड देयरफॉर अब इन दोनों का सम लेते हैं। देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स बराबर है ए वन प्लस बी वन, वाई बराबर है ए टू प्लस बी टू। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें और एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो ये हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस बी वन प्लस बी टू। और आप नोट करें कि ए वन प्लस ए वन आई का एलिमेंट है, ए टू आई का एलिमेंट है, दोनों का सम भी आई का होगा, इसी तरह इन दोनों का सम जे का एलिमेंट होगा, तो ये आई का एलिमेंट प्लस जे का एलिमेंट, तो दिस बिलोंग्स टू आई प्लस जे। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई बिलोंग टू आई प्लस जे।
तो आई प्लस जे के कोई दो एलिमेंट्स लिए जाए तो उनका सम भी आई प्लस जे ही में होगा। अब तीसरी कंडीशन में हमें एक एलिमेंट रिंग का लेना चाहिए। लेट आर बिलोंग टू द रिंग आर, और एक एलिमेंट आई प्लस जे का लेना चाहिए एंड एक्स बिलोंग टू आई प्लस जे। देन अब आई प्लस जे का एलिमेंट जो एक्स है इसे तो बराबर होना चाहिए। देन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, चूँकि आई प्लस जे का एलिमेंट आई और जे के एलिमेंट का सम है तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वेयर ए बिलोंग टू आई एंड बी बिलोंग टू जे। एक्स को फिर इस किस्म का एलिमेंट होना चाहिए ए प्लस बी। अब हम आर को एक्स से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये भी आई प्लस जे में होता है या नहीं होता। देन देयरफॉर अब आर को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू आर, और एक्स है ए प्लस बी। अब ये आप जानते हैं रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिविटी या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये आ जाएगा आर ए प्लस आर बी। अब आई चूँकि आइडियल है, लेफ़्ट आइडियल है, तो जब आई के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई का एलिमेंट होगा। इसी तरह जे के एलिमेंट बी को जब रिंग के एलिमेंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जे का एलिमेंट होगा। सो ये आई का एलिमेंट, ये जे का एलिमेंट, दोनों का सम बिलोंग करेगा आई प्लस जे को। तो देयरफॉर आर एक्स बिलोंग टू आई प्लस जे। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी होने की, दूसरी कंडीशन एडिटिवली क्लोज्ड होने की, तीसरी कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। रिंग का एलिमेंट आइडियल का एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो देयरफॉर आई प्लस जे इज आई प्लस जे इज लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो किसी रिंग के दो लेफ्ट आइडियल दे दिए जाएं तो उन लेफ्ट आइडियल्स का सम जो है वो भी लेफ्ट आइडियल ही होता है। सो हैविंग डन दैट, now we come to a concept you know from ग्रुप थ्योरी। आप जानते होंगे जब हमने ग्रुप्स पढ़े थे तो हमने ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट पढ़ा था, और नॉर्मल सब ग्रुप के साथ हम ग्रुप का कोशेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं जो कि लेफ़्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स का सेट होता है, जिसे हम कोशेंट ग्रुप कहते हैं। फिर आपको याद होगा कैनोनिकल मैप और फिर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आते हैं। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। सो लेट्स डिफाइन कोशेंट रिंग, कोशेंट और फैक्टर रिंग। कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग। सो कोशेंट रिंग और फैक्टर रिंग। इस सिलसिले में ये बात याद रखिए, कोशेंट रिंग या फैक्टर रिंग का जब हम जिक्र करते हैं तो जो हम आइडियल्स कंसीडर करते हैं वो हमेशा टू साइडेड आइडियल्स होते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि कोशेंट रिंग या जैसे हम कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप जब डिस्कस करते हैं तो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हम टू साइडेड आइडियल्स आर इम्पॉर्टेंट, जैसे वहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है। सो लेट आर बी अ रिंग, let R be a ring and
I be a two-sided ideal of R? टू-साइडेड के में ज़रूरत पेश आती है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर. Be a two-sided ideal of R. Then अब देखिए बेसिकली आप जानते हैं कि जब हम आर को रिंग कहते हैं तो आर में दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन का, एक मल्टीप्लिकेशन का. अंडर एडिशन आर जो है ये अबीलियन ग्रुप होता है. अबीलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप दिया जाए तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है. अब आइडियल की तरफ आ जाइए. आइडियल बेसिकली सब रिंग होता है और सब रिंग की डेफिनेशन में आपको याद होगा, सब रिंग किसी रिंग का एक ऐसा सबसेट होता है जो इंड्यूस्ड ऑपरेशंस के तहत रिंग हो. इसके मानिए कि सब रिंग जो है वो बेसिकली अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होता है. तो आर रिंग है तो अंडर एडिशन ये अबीलियन ग्रुप है. आई इसका आइडियल है तो ये भी अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप है. और आर वाला आर के एज ए अबीलियन ग्रुप का ये आई जो है ये सब ग्रुप है उसका. और आर चूँकि कॉम्यूटेटिव है और कॉम्यूटेटिव